بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اکیلی سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں کسی جینگر کے بولنے کی آواز سنائی دیتی تو وہیں دور کسی بستی میں بھی وقفے وقفے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول میں چھائے ہوئے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مجھے اس اندھیری رات میں سنسان راستے پر چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں تھک ہار کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر ذرا آرام تو کر سکوں۔ کیا پتا مجھے پھر یہ آرام کا موقع میسر آنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے پتھر پر نیم دراز ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ میں کچھ دیر کے لیے سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے آس پاس ایک سکون سا محسوس ہوا۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے اس سکون کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارنا چاہ رہے تھے۔ وہ سکون بھرے ماحول اور مہکی مہکی ہوا میں کب میری آنکھ لگی مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور اپنے حسین سپنوں میں کھو گئی۔ ایک میرے سپنے ہی تو تھے کہ جن میں مجھے خوشی ملتی تھی، مجھے سکون ملتا تھا، ورنہ اصل زندگی میں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اپنی ساری حسرتیں یوں ہی سپنوں کی دنیا میں پوری کیا کرتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں میں اپنی خواہشات کو حاصل کر سکتی تھی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے قریب چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز بھلے سے بہت دھیمی تھی، مگر یہ آواز میری سماعتوں تک پہنچ رہی تھی، جس سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ارد گرد چہل قدمی کر رہا ہے۔ پہلے تو میں خواب میں کھوئے ہونے کے باعث میں نے دھیان نہیں دیا، مگر اب قدموں کی آہٹ کے ساتھ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا، جس سے میرے خواب میں بھی خلل پڑ رہا تھا کہ نہ جانے کون تھا جو اب مجھے خواب میں بھی سکون نہیں دے رہا تھا، جانے کون تھا جو میرا خواب برباد کرنے پر تلا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے خواب میں گم ہونا چاہا، مگر بے سود۔ اس مرتبہ میری ساری توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی تھی۔ میرا خواب ٹوٹ چکا تھا، میرا چین چھن چکا تھا، خواہشات آج لا حاصل ہی رہے تھے۔ میرا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو میں واپس ہوش کی دنیا میں آئی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف دیکھا، مگر میرے ارد گرد سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر بار بار اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ سوتے ہوئے مجھے وہم کیسے ہو گیا۔ میرے ارد گرد لازمی کوئی نہ کوئی تو تھا ہی جو مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے خود اپنے ارد گرد قدموں کی آہٹ اور اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ یہی سب محسوس کر کے ہی تو میں خواب سے جاگی تھی۔ اگر وہم ہوتا تو میں نیند سے کیوں جاگتی؟ چاروں جانب تاریکی محسوس کرتے ہی میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اگر میرے ارد گرد کوئی انسان نہیں تھا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ میرے ارد گرد کوئی ہوائی مخلوق تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی اور مخلوق کا خیال ہی مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس پتھر سے اٹھی اور اپنے قدم منزل کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے زیر لب قرآنی آیات کا ورد بھی کرنا شروع کر دیا۔ میں مختلف پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ جانے راستہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا تھا۔ جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا ہر لمحہ بڑھتا ہوا خوف مجھے شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے حواس کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے قدموں کی آہٹ میں کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی سمت کا تعین نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کہاں نہیں، بس میں بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر بھاگتے رہنے کے بعد میرا سانس پھول گیا۔ میری ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا۔ اب ان میں مزید بھاگنے کی ہمت نہ رہی۔ میری آنکھیں ابھی تک بند تھیں، مارے خوف کے میں نے زور سے انہیں میچا ہوا تھا کہ تبھی میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں اپنا توازن کھو بیٹھی۔ وہ تو شکر ہے کہ وقت رہتے میں نے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے تھے، جس کی وجہ سے میں گرنے سے بچ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے ایک گہرا گڑھا تھا۔ اگر میں اپنے ہاتھ زمین پر نہ ٹیکتی تو یقیناً میں نے اس گڑھے میں گر جانا تھا اور پھر کوئی مجھے اس سے نہیں نکال پاتا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا
और शुक्र का सांस लिया था। मैं तारीक जंगल से बाहर निकल चुकी थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और वापस पीछे देखने की गलती नहीं की और अपने घर की तरफ कदम मोड़ दिए। जब तक मैं घर पहुंची, मस्जिदों में फजर की अजानें बुलंद हो रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जवाब निदारद। अब्बा अम्मा से तो मुझे जागने की उम्मीद नहीं थी, मगर नानी तो हर रोज फजर से जाग जाया करती थी। मगर क्या पता उनके कानों तक दरवाजे की दस्तक की आवाज पहुंची भी थी या नहीं, क्योंकि नानी एक कान से बहरी थी। मैंने सुराख से अंदर झांका तो घर मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ आंगन में लगे बल्ब की हल्की जर्द रोशनी आंगन में फैली थी। कोई हलचल महसूस न करते हुए मैंने मजीद दस्तक देने का इरादा तर्क कर दिया और वहीं दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गई। एक तो नींद से बुरा हाल हो रहा था और दूसरा भाग भाग कर मेरी टांगों का भरता बन गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ दिन तक ये बिल्कुल हिलने जुलने के काबिल नहीं रहेंगी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं ढेर सारा आराम करती, मगर अफसोस आराम और सुकून मेरी जिंदगी में कहाँ थे। मेरे तो नसीब में ही ये भाग दौड़ लिखी थी। फिर भला मैं कैसे आराम कर पाती। मैं दरवाजे के साथ ही टेक लगाए बैठ गई और वहीं सो गई। किसी ने सच ही कहा है कि नींद तो कांटों पर भी आ जाती है, और मेरे लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। मुझे आदत थी यूं बैठे बिठाए सो जाने की, क्योंकि लेटने और कमर सीधी करने का वक्त मुझे कम ही मिलता। खैर, मेरी आंख अब्बा की पुकार सुनकर खुली थी। अब्बा ने मुझे बाजू से दबोच कर उठाया और मुझे खींचते हुए ले जाकर अम्मा के कदमों में फेंका। अब्बा अम्मा से कहने लगा, लो देख लो अपनी महारानी के करतूत। रात भर न जाने कहाँ कहाँ मुंह काला करती रही है और अब यहाँ दरवाजे के बाहर सोई पड़ी है। इसकी इन्हीं हरकतों ने हमें जमाने में बदनाम किया हुआ है। सभी लोग हमें बुरा भला कहते हैं। पूछो इससे कहाँ थी ये रात भर। अब्बा की बातें सुनने के बाद अम्मा की तरफ मैंने देखा। अम्मा के चेहरे पर मेरे लिए कोई भी तासुर नहीं मिला था, बल्कि वो तो मुझे शक्की नजरों से देखते हुए अब्बा की पूछी गई बातों की तायीद चाह रहे थे। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तूने तो मुझे फोन करके कहा था कि सुबह 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना, वरना उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं तेरा फोन सुनते ही वहां से निकल आई थी, लेकिन रास्ते में जंगल था। उस जंगल में रास्ता भटक गई और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते फजर हो गई। मैंने दरवाजा बजाया था, लेकिन किसी ने खोला ही नहीं, इसलिए मैं दरवाजे के साथ ही बैठ गई और वहीं सो गई। मैंने डरते डरते अपनी बात मुकम्मल की थी और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था। और फिर वही हुआ था जिसका मुझे डर था। अम्मा ने मुझे चोटी से पकड़कर उठाया, फिर मुझे कहने लगी, झूठी कहीं की, कितनी आसानी से सारी बात मुझ पर डाल रही है। मैंने तो तुझे सरे शाम फोन किया था कि अगर तू उसी वक्त वहां से निकली होती तो 1 घंटे में तुझे घर पहुंच जाना चाहिए था। सारी रात खुद आवारागर्दियां करती आई है और इल्जाम मुझ पर डाल रही है। और कौन सा वो जंगल तेरे रास्ते में पहली बार आया था कि जो तुझे रास्ता भूल गया? आज से पहले तो तुझे कभी नहीं भूला रास्ता। अम्मा का मुझ पर तशद्दुद जारी था कि जब अब्बा फिर से बोल उठा, और तो देखो कितनी सफाई से झूठ बोल रही है कि मैंने दस्तक दी थी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्या हम इतने बेइस हैं कि इसने दस्तक दी होती तो कोई दरवाजा नहीं खोलता? चलो हम दोनों नहीं जागे, लेकिन अगर ये दस्तक देती तो अम्मा तो जाग रही होती ना। फजर में वो दरवाजा खोल देती, मगर ऐसा ये महारानी चाहती तो नहीं थी ना। इसने जानबूझकर दस्तक नहीं दी और दरवाजे के बाहर पड़ी रही ताकि कोई मोहल्ले वाला इसे बाहर सोते देख लेता और फिर आकर हमसे बास पुस्त करता। फिर सभी हमें बुरा भला कहते कि हमने इसे घर से निकाल दिया, लेकिन किसी को क्या पता कि ये मोहतरमा तो खुद ही घर के अंदर रहने के मूड में नहीं है। अम्मा ने भी मुझे कलमुही कहते मेरी कमर में 2-4 मुक्के चढ़े थे। मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी, मगर अम्मा की गिरफ्त से आज़ाद ना हो पाई। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर नानी भी कमरे से बाहर आ गई। सारा मंजर देखते वो फौरन से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे अम्मा की गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। अम्मा हट्टी कट्टी और जान वाली औरत थी।
और नानी बेचारी ठहरी हड्डियों का ढांचा। उन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ थी कि वो मुझे अम्मा की गिरफ्त से आज़ाद करवा पाती। उल्टा वो खुद ही अम्मा का एक धक्का लगने की वजह से लड़खड़ा कर पीछे जा गिरी। नानी को गिरते देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, छोड़ो मुझे, अम्मा छोड़, मैं कहती हूँ। इतना कहते ही मैंने जोर लगाया। मेरे कई बाल अम्मा की मुट्ठी में रह गए, मगर खुदा का शुक्र था कि मैं खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। मैंने फौरन से जाकर नानी को उठाया और उनके हाथ पैर टटोल कर देखने लगी। शुक्र था कि वो चोट लगने से बच गई थी। मैंने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर नानी को सहारा देकर उनके कमरे में ले आई। लाडो, क्या है ये सब? कहाँ थी तू रात भर? ये तेरा बाप क्या कह रहा है? नानी ने एक साथ ही इतने सारे सवाल कर डाले। मैंने नानी को सारी कहानी कह सुनाई, जिसको सुनने के बाद नानी रोते हुए अम्मा की अक्ल पर मातम करने लगी। न जाने इस मूर्ख को कब अक्ल आएगी, जाने क्या हो गया इसे। अच्छी भली थी मेरी बेटी, न जाने किसकी नज़र लग गई है इसे। मगर तू फिक्र ना कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगी। नानी ने हमेशा की तरह आखिर में मुझे तसल्ली देते हुए कहा, मगर अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मुझ में मज़ीद सकत नहीं बची थी ये सब बर्दाश्त करने की। पता नहीं नानी, वो अच्छा दिन कब आएगा। उस अच्छे दिन के इंतज़ार में मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में कभी वो अच्छा दिन आएगा। अब उस अच्छे दिन के आने के बजाय तो मैं अपनी मौत की दुआएं मांगती हूँ। काश मुझे मौत आ जाए और मुझे इस सब से निजात मिल जाए, क्योंकि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती। नानी, अल्लाह से कहो ना, या तो मुझे इस जहन्नुम से निकाल ले या फिर मुझे मौत दे दे। मैंने बेबसी से नानी के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा। अरे ना ना बावली, क्या हो गया है तुझे? ऐसे नहीं कहते। नाउम्मीदी बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह बेहतरीन हिकमत करने वाला है। उसके हर काम में कोई न कोई मसलहत होती है, और वो बंदों को इसीलिए तो आजमाता है ताकि उनको अपने करीब कर सके। इसलिए नहीं कि बंदे उससे दूर होकर कुफर की राह पर चल पड़े। अभी जो तुमने मौत वाली बात की है वो सरासर कुफर है। उठो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो कि ऐसी कोई बात दोबारा मुंह से मत निकालना। ऐसी बातों से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। नानी ने मेरे सर पर बोसा देते हुए मुझे समझाया था। मैंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए नानी को तो बेफिक्र कर दिया, मगर खुद मेरी फिक्रें रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही ज़िल्लत में गुजरने वाली थी। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने उस औरत की कोख से जन्म लिया था जो माँ कहलाने के लायक ही नहीं थी। अब्बा से तो मुझे कोई शिकवा था ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरा सौतेला बाप था। उससे मुझे हर किस्म के रवैये, हर किस्म की बात की उम्मीद थी। वो कुछ भी कर सकता था, मगर मुझे अपनी माँ से इस तरह के रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो मेरी सगी माँ थी, उसे तो मेरा ख्याल होना चाहिए था। मगर हाय अफसोस, मेरी किस्मत में माँ का प्यार था ही नहीं। मैं खुद की किस्मत को कोसते हुए उठकर घर के कामों में मशगूल हो गई, वरना अम्मा को फिर से मुझ पर हाथ उठाने का बहाना मिल जाता। अम्मा के हाथ तो ना थकते मुझे मारते हुए, मगर मेरे खुद का बदन थक जाया करता। इसीलिए मैं कम से कम आज के दिन तो अम्मा को मज़ीद कोई और मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन अम्मा भी कहाँ बाज आने वाली थी। जब उसके हाथ न चल सके तो उस वक्त उसकी ज़ुबान चलती थी, जिससे मेरा जिस्म तो बचा रहता, मगर मेरी रूह छलनी हो जाया करती। जो जिस्म के ज़ख्म थे वो तो भर ही जाते, लेकिन रूह के ज़ख्म जो किसी जोंक की तरह दिमाग से चिपक जाया करते, जिन्हें चाहे लाख खुरुच कर दिमाग से निकालना चाहो, मगर वो नहीं निकलते थे। अभी मुझे काम करते हुए कुछ ही देर हुई थी जब अम्मा तन फन करती मेरे सर पर आ पहुंची। जल्दी जल्दी हाथ चलाना मनूस कहीं की, हाथों में जान नहीं है क्या? सारी रात आवारा गर्दियां करते हुए तो तू जरा नहीं थकती। घर के कामों को करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। इधर मेरे घर में सुस्ती फैलाने की जरूरत नहीं है।
अम्मा मुझे कहते साथ ही बर्तन उठाकर पटकने लगी। मैं अफसोस भरी नज़रों से अम्मा की तरफ देखती रह गई। मेरा नाम नूर है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। अब्बा का अपना कारोबार था और अम्मा ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। उनकी शादी दादी की पसंद से हुई थी। अम्मा दादी की भांजी थी और दादी को बेहद अजीज थी। मेरी पैदाइश शादी के 2 साल बाद ही हो गई थी। मैं सिर्फ 3 साल की थी जब मेरे अब्बा इस दुनिया से गुजर गए। अब्बा के गुजरने की देर थी कि सब ने मुंह मोड़ लिया। सब अपने पराये हो गए थे। अम्मा ने भी कुछ ही अरसे बाद अपने लिए नया हमसफर ढूंढ लिया था, जिसके चलते दादी ने गुस्से में आकर अम्मा को खूब डांटा कि अभी मेरे बेटे को मरे दिन ही कितने हुए हैं जो तुमने नए हमसफर का इंतखाब कर लिया है। अभी तो उसके कफन का रंग भी मैला नहीं हुआ होगा। अम्मा तो अब्बा को भूल ही चुकी थी। वो दादी को कहने लगी कि खुद तो आपका बेटा मुझे भरी जवानी में बेवगी की चादर उड़ा गया, खुद तो वो मर गया, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं भी जीते जी मर जाऊं? मेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं आगे की जिंदगी यूं तने तनहा तो नहीं गुजार सकती। मुझे कभी ना कभी तो किसी हमसफर का इंतखाब करना ही है, तो क्यों ना अभी ही कर लूं? आप क्या चाहती हैं कि मैं मुंह पर झुर्रियां आने का इंतजार करूं और बुढ़ापे में जाकर शादी करूं? आपने अपने बेटे का सोग मनाना है तो शौक से मनाएं। मुझे कोई शौक नहीं है मरे हुए का सोग मनाने का। जब मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन है तो मैं वो क्यों ना मुंतखब करूं? उस रोज दादी और अम्मा की बड़ी लड़ाई हुई थी। उसमें ताया और ताई भी शामिल हो गए। उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि दादी और ताया ने मुझे और अम्मा को घर से निकाल दिया। अम्मा मुझे लेकर नानी के घर आ गई और कुछ ही दिन बाद अम्मा का नया हमसफर भी मेरे सौतेले बाप के रूप में रुखसत होकर नानी के घर आ गया। नानी ने अम्मा को बहुत समझाया कि शादी करनी ही है तो उससे करो जो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर सके। जिस शख्स का इंतखाब तुमने किया इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पढ़ाई है और ना ही इसके पास कोई नौकरी है और ना ही कोई काम धंधा है। कल को वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कहाँ से खिलाएगा? तुम्हारी ज़रूरियात को कहाँ से पूरा करेगा? इस पर अम्मा कहने लगी कि अम्मा वो सब कुछ हो जाएगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं कमाता तो ना कमाए, मैं तो कमाती हूँ। मेरा अच्छा भला पार्लर चलता है, उसके कमाने ना कमाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ अम्मा ने उस समीर नामी शख्स से शादी कर ली। यूँ तो सब कुछ ही ठीक ठाक चल रहा था। मेरी सारी जिम्मेदारी नानी ने ले ली थी, क्योंकि अम्मा तो दिन रात पार्लर में मसरूफ़ रहती और मेरा सौतेला बाप वो बस मेरी माँ की कमाई उड़ाता रहता। 2 साल बाद मेरा सौतेला छोटा भाई दुनिया में तशरीफ़ लाया। मैं तो अपने छोटे भाई को लेकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मेरी सारी खुशी उस वक्त हवा हो गई जब मेरे सौतेले बाप ने मेरे हाथ से 4 दिन के तैमूर को खींचकर मुझे बेदर्दी से किसी अछूत की तरह खुद से दूर धकेला था। मैं अंधे मुंह फर्श पर गिरी थी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर मेरी माँ को आवाज देने लगा। उसकी आवाजें सुनकर अम्मा और नानी दोनों ही बाहर आ गए। नानी ने मुझे उठाकर बाहों में भरा था, जबकि अम्मा मुझे एक नज़र देखते हुए अब्बा की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। क्या हुआ समीर, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इस पर अब्बा कहने लगे कि ये तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ है? अभी अगर मुझे आने में ज़रा सी देर हो जाती तो तुम्हारी ये बेटी मेरे बेटे को जान से मार देती। गला दबा रही थी ये उसका। तुम कहाँ थी? तुमने तैमूर को इसके पास छोड़ा भी तो कैसे? मैंने तो इसे अपनी बेटी समझा था, इसे बाप का प्यार दे रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि इसका खून इस कदर घटिया निकलेगा। इसमें तो अभी से सगा सौतेलापन भरा हुआ है। मैं दोबारा इसको अपने बेटे के आसपास भटकते हुए भी ना देखूं। ये बात समझ लो तुम भी, और अपनी बेटी को भी समझा लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अब्बा तैमूर को लेकर कमरे से चला गया, जबकि अम्मा किसी चील की तरह मुझ पर झपटी और मुझे नानी की गिरफ्त से छुड़ाकर पीटने लगी। जब तक कि नानी कुछ समझती तब तक अम्मा ने मुझे अच्छा खासा मार दिया था। अम्मा का मुझ पर हाथ उठ गया था और फिर ऐसा उठा कि अब तक न रुका था। नानी बेहतरी कोशिश करती कि मैं अम्मा के अताब का निशाना न बनूं,
लेकिन अम्मा से बच पाना कहाँ मुमकिन था। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी और मेरा सौतेला भाई 13 साल का। पहले जो मुझे उसके मुतालिक थोड़ी बहुत गलत फहमी थी कि मेरा भाई बड़ा होकर मेरा साथ देगा, अब वक्त के साथ साथ वो भी दूर हो गई, क्योंकि जैसे जैसे मेरा सौतेला भाई बड़ा होता गया था वैसे वैसे उसने साबित कर दिया था कि वो मेरे सौतेले बाप का ही बेटा था। वो बिल्कुल मेरे सौतेले बाप का ही परतू था। उसी की तरह मक्कार और शातिर दिमाग था। आए रोज मुझ पर कोई न कोई झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अम्मा से मार पड़वाया करता और रही सही कसर उसका बाप पूरा कर दिया करता। यूं उन दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। नानी दिन रात मेरे लिए दुआएं मांगती और अब तो ये दुआएं मैंने भी मांगना शुरू कर दी थी कि किसी तरह मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो इनसे मेरी जान छुड़वा ले। हम न जाने मेरी ये दुआएं कब कबूल होनी थी। खैर, वक्त गुजरता जा रहा था। नानी ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उस घर में रहना मेरे लिए मुश्किल था। नानी को मेरी जान यहीं से छुड़वानी थी और उसका बेहतरीन हाल यही लग रहा था कि मेरी शादी कर दी जाती, मगर अब कोई मुनासिब रिश्ता मिलता तो ही ना। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन यूं ही मैं दिन भर के कामों से थकी हारी जब बिस्तर पर लेटी तो नानी ने मुझे मुखातिब किया था। नूर, कल कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं, बच्चे अपनी हालत थोड़ी सी दुरुस्त कर लेना। मैंने नानी से पूछा कि उसने अम्मा को बताया है या नहीं, तो नानी ने कहा कल ही बता दूंगी। आज मुझे उन्होंने मौका ही कब दिया है कि उन्हें कुछ बताती। उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि 2 घड़ी अपनी बूढ़ी माँ के पास भी बैठ जाए। अगले रोज नाश्ते के वक्त जब नानी ने उन्हें बताया तो वो दोनों मियाँ बीवी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और फिर एकदम से बुरे से मुंह बना लिए, जैसे उन्हें अम्मा की ये बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। अम्मा नानी को कहने लगी कि तुझे किसने कहा था इसका रिश्ता ढूंढने के लिए? किससे पूछकर तू इसका रिश्ता ढूंढ रही है? मैं इसकी माँ हूँ, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और इसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। अम्मा बिला वजह ही चीखने लगी थी जब नानी ने उसे चुप करवाया और कहा, इतने साल से तो तुझे याद नहीं आया कि ये तेरी बेटी है? मेरा तुझसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। तू जान और जाने तेरे काम। मैंने तुझे बताना था, सो बता दिया है। आज वो लोग आ रहे हैं, अगर दिल हुआ तो उनसे मिल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी नवासी के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। इतना कहकर नानी ने बात खत्म कर दी। यूं शाम 4 बजे के करीब वो लोग हमारे घर आए थे। अम्मा सुबह तो मुंह बनाकर बैठी रही, लेकिन जैसे ही वो लोग आए उनके सामने एकदम शीरी बन गई थी। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन लोगों से बातें करने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी ही अम्मा है। दिल ही दिल में अम्मा को यूं देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। चलो, अम्मा को एहसास तो हुआ था कि उसकी कोई बेटी भी है जिसके फराइज उसे निभाने, मगर ये सिर्फ मेरी खुशफहमी थी कि अम्मा को इस चीज़ का एहसास हुआ था। अम्मा के दिमाग में जो चल रहा था मैं उससे ना वाकिफ थी और खुश हुए जा रही थी। मेरी खुशी तो तब उड़ी जब उन लोगों ने अम्मा से मुझे बुलाने के लिए कहा। मैंने सलीके से सर पर चादर जमा ली कि अम्मा अभी मुझे लेने आती होगी, मगर अम्मा के जुमलों ने तो मेरी सारी खुशी एक पल में ख़त्म कर दी। अम्मा उन लोगों को कहने लगी कि माजरत के साथ बहन, आपको यहाँ आने में बहुत तकलीफ हुई। वो दरअसल मेरी अम्मा ने खामखाई आपको जहमत दे दी। बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही किसी से तय किया हुआ है, बस अभी अंदरूनी बात ही थी। अम्मा को इस बारे में इल्म नहीं था, इसीलिए उन्होंने आपको बुला लिया। आप अब जा सकते हैं क्योंकि मेरी बेटी किसी और से मंसूब है। वो लोग गुस्से से उठकर वहाँ से चले गए थे। नानी उन लोगों को रोकती रह गई, मगर वो लोग सुनी अनसुनी करते चले गए। नानी अम्मा से कहने लगी कि ये तुमने क्या किया है? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता हाथ लगा था, दोबारा ऐसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? इस पर अम्मा कहने लगी कि हाँ, तो ना मिले अच्छा रिश्ता, हमने क्या अच्छे रिश्ते का अचार डालना है? मुझे कोई नहीं चाहिए अच्छा रिश्ता, इसीलिए मैंने उन लोगों को घर से वापस भेज दिया है। नानी ने अम्मा से पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो ख्याल कर, तेरी बेटी है वो। तो अम्मा कहने लगी कि इसी का ही तो ख्याल कर रही हूँ, इसको यूं इतनी आसानी से रुखसत नहीं करूँगी।
सारी जिंदगी मेरे सीने पर मूंग दलती रही है, और अब तू क्या चाहती है कि मैं इसे यूं ही आसानी से इतनी सारी आसाइशों में रुखसत कर दूंगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अम्मा। इस सराफा को तो मैं ऐसी जगह फेंकूंगी कि ये चाह कर भी वहां से निकल नहीं पाएगी। ये भी याद रखेगी कि किसी का जीना हराम करना कैसा होता है। सारी जिंदगी ये मेरे शोहर और बेटे के पीछे पड़ी रही, और अब यूं बिना हिसाब दिए चिड़िया की तरह फुर के उड़ना चाहती है। ऐसा तो मैं किसी कीमत नहीं होने दूंगी। ये तू भी कान खोल कर सुन ले, और उसे भी बता देना कि किसी शहजादे के ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि मैं किसी भी शहजादे को उसकी जिंदगी में आने ही नहीं दूंगी। इतना कहकर अम्मा तन फन करती घर से निकल गई, जबकि मैं बमुश्किल अपने आंसू को रोकते और अपनी सिसकियों का गला घोंटते हुए कमरे से निकलकर बाहर आई, जहां नानी नीचे बैठी बेआवाज रो रही थी। नानी की आंखों से छम छम आंसू बह रहे थे। मैंने नानी को वहां से उठाकर ऊपर बिठाया। नानी, प्लीज चुप कर जाएं। इस तरह रोने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मत रोएं प्लीज। मगर नानी तवातुर से रोती जा रही थी। रोना तो और क्या करूं? तेरी अपनी ही माँ तेरी दुश्मन बनी बैठी है। तूने सुना नहीं नूर उसने क्या कहा है? वो तुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नानी, ये रिश्ता ना सही तो कोई और मिल जाएगा। आप तो अपनी तबीयत खराब ना करें। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने बहुत मुश्किल से नानी को चुप करवाया, मगर नानी की परेशानी बढ़ती ही गई, क्योंकि अम्मा उसकी परेशानी को कम होने ही नहीं दे रही थी। नानी मेरे लिए जो रिश्ता भी लाती, अम्मा उसे इनकार करके वापस भेज दिया करती। यूं ही 3-4 साल मजीद गुजर गए, मगर मेरा रिश्ता कभी भी नहीं लगा। रिश्ता तो तब लगता जब अम्मा कहीं लगने देती। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेकर आता ही नहीं था, क्योंकि अम्मा ने सारी तरफ ये बात फैला दी थी कि उसने मेरा रिश्ता बचपन से ही कहीं तय कर रखा है, इसलिए कोई भी हमारे घर रिश्ता लेकर ना आए। नानी बहुत परेशान थी। परेशानी की वजह से आए रोज़ उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, मगर अम्मा को कोई परवाह नहीं थी। वो तो अपने बेटे और शोहर में मगन थे, जो दुनिया जहाँ के हड हराम साबित हुए थे। मैंने तो अब अपनी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि गुजरे सालों में मुझे अच्छी तरह यकीन हो चला था कि अम्मा ने मेरी शादी नहीं होने देनी थी। इसलिए मैंने शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया और यही अपने नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मैं और कर भी क्या सकती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। उस रात नानी का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो गया था। मैंने उनको दवा दी और उनके सरहाने बैठकर उनका सर दबाने लगी थी। यूं ही काफ़ी देर गुजर गई। इसी तरह बैठे बैठे मैं कब नींद की वादियों में उतर गई, मुझे इल्म ही न हुआ। मैंने खुद को एक वीरान जगह पाया। मेरे इर्द गिर्द सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। गहरा तारीक अंधेरा था और उसी तरह का तारीक सन्नाटा भी। कुछ ही देर के बाद मेरे पास से सरसराती हुई तेज़ हवा गुजरी, जिससे मुझे अपने कानों में पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जिन्हें हवा छू कर गुजरी थी। ऐसे दरख्त तो सिर्फ जंगल में ही हो सकते थे, तो क्या मैं किसी जंगल में थी? ये सोच आते ही मैंने मारे खौफ के अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, मगर मुझे सिवाय तारीकी के और कुछ भी दिखाई ना दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। जाने में कौन सी जगह थी। अब मैं यहाँ से निकलती तो कैसे निकलती? ये बात मुझे बेहद खौफ में मुब्तला कर रही थी। कुछ किसी जगह का तयन होता तो चलो मैं अंधेरे में ही अंदाजे से कदम उठाकर यहाँ से निकल जाती, मगर मुझे उस जगह का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई थी और ख़ुद को उससे बाहर निकालने के लिए चलना चाहा, मगर यूं ही मैंने कदम उठाने की कोशिश की, मुझसे कदम ही नहीं उठाया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने मेरे पैर बुरी तरह से जकड़ लिया। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने पैरों को उठा नहीं पाई। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह झिंझला कर रह गई। मैंने बार बार अपने कदमों को उठाना चाहा, मगर सब बेसूद। मैं इसी सब कोशिश में लगी हुई थी कि जब अपने पास होने वाली सरगोशी ने मुझे सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो अपना आखिरी वक्त आता मालूम हुआ। मेरे कान के पास एक मर्दाना इंतहाई गंभीर मगर मध्यम आवाज़ में की गई सरगोशी उभरी थी कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी।
उस सरगोशी को सुनते ही मुझे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। न जाने उस आवाज़ में क्या था ऐसा जिसने मुझे बेतहाशा खौफ में मुब्तला कर दिया था। मैंने आंखें बंद करते हुए एक ज़ोरदार चीख मारी थी और उठ बैठी। मैंने देखा कि नानी मेरे पास बैठी हुई थी और फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ। हवास बहाल होते ही मुझे समझ आया कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था। मैंने नानी को मुतमईन करके वापस लिटाया और ख़ुद पानी पीकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, मगर गंभीर आवाज़ में की गई वो सरगोशी बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही। जाने वो किसकी आवाज़ थी। भला ये भी कोई ख्वाब हुआ कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मुझे कोई और हसीन ख्वाब भी तो आ सकता था, या यही ख्वाब किसी खूबसूरत जगह, किसी परिस्तान में किसी खूबसूरत शहजादे के संग भी तो आ सकता था। ये ख्वाब इतना खौफनाक होकर क्यों दिखाई दिया। लगता है अम्मा की नफ़रत मेरे ख्वाबों तक भी पहुंच चुकी है, जब मुझे ख्वाब भी इस कदर भयानक दिखाई दिया है। मैं यही कुछ सोचती रही थी। आखिरी पहर ढल जाने के बाद कहीं जाकर मेरी आंख लगी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर बेहद दर्द कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी मज़ीद सो जाऊं, लेकिन मैं अपने दिल की नहीं सुन सकती थी। मैं किस्मसाते हुए उठ बैठी थी। अंगड़ाई लेने के लिए जो ही मैंने हाथ उठाए, मेरी आंखें एकदम हैरत से फैली थी। मेरे हाथ से फूल मेरी गोद में आन गिरा। वो फूल सुर्ख गुलाब का फूल था और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था। उसकी भीनी भीनी महक मेरी नाक के नथनों से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई तोड़ कर लाया हो। मगर ये फूल यहाँ आया कहाँ से था और कौन लाया था? ये बात मेरे लिए बाइसे हैरत थी, क्योंकि हमारे आंगन में तो सारे पौधे चंबेली के थे, क्योंकि मुझे और मेरी माँ को चंबेली के फूल बहुत पसंद है। फिर इतनी सुबह सुबह ये ताज़ा गुलाब कहाँ से आया? मैं कुछ देर बैठी तो सोचती रही। फिर मैंने दराज खोलकर गुलाब उसमें डाल दिया और ख़ुद उठकर नाश्ते की तैयारी करने बावर्ची खाने में चली गई। दिन ख़त्म हुआ। रात को जब मैं बिस्तर पर आई तो मुझे बेसाख्ता कल रात वाला ख्वाब याद आ गया। ख्वाब में तो मैं डर गई थी, मगर अभी मुझे वो ख्वाब याद करके हंसी आ रही थी कि कैसा ख्वाब था भला ये। उसके साथ ही मेरा ध्यान सुबह वाले गुलाब की तरफ चला गया। मैंने दराज खोलकर उससे गुलाब निकाला, जब थोड़ा थोड़ा मुरझा गया था। मैंने यूं ही उसको एक हाथ में पकड़कर उस पर दूसरा हाथ फेरा तो वो गुलाब एकदम से खिलखिला उठा। ये मंजर देखकर गुलाब मेरे हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा। मैं हैरानगी से गुलाब की तरफ देख रही थी, जो बिल्कुल ताज़ा हो गया था, बल्कि सुबह की तरह। ऐसा भला कैसे हो सकता था? मैंने गौर से उस फूल की तरफ देखा था। वो किसी आम गुलाब की तरह नहीं था। उसकी पंखड़ियाँ, उसकी साख्त पल पल में रंग बदल रही थी। मैंने एकदम से उसे उठाया और उसे वापस दराज में डाल दिया। वो कोई आम गुलाब नहीं था, ये यकीनन कोई जिन्नात का तलसुमाती गुलाब था। मैंने कहानियों में जादू और तलसम के बारे में बहुत पढ़ा था। मेरा पूरा वजूद पसीने में डूब चुका था। मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। मैंने जल्दी से लेटकर बिस्तर ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में मैंने अपनी इस कोशिश में कामयाबी पा ली। मुझे सोए हुए अभी 3 से 4 घंटे ही गुजरे थे कि जब मैं एक मर्तबा फिर से बड़बड़ाते हुए उठ बैठी। मुझे फिर से कल रात वाला ख्वाब आया था। वही मंजर था, वही तारीक जंगल, तारीक सन्नाटा, गहरा अंधेरा, गहरी खामोशी और वही गंभीर आवाज़ में की गई मध्यम सरगोशी। मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अतदाल पर लाया और फिर कुरानी आयात पढ़कर खुद पर विर्त करते हुए सो गई। सुबह जब मैं उठी तो आज भी मेरे हाथ में गुलाब का ताज़ा महकता फूल था, जिसे देखकर एक मर्तबा फिर से मुझे हैरानी हुई थी। इतने में मेरे कानों में अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घड़ी की तरफ देखा जो 8 बजे का वक्त बता रही थी। मैंने जल्दी से उस फूल को उठाकर दराज में डाला और अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते हुए बिस्तर से उठ खड़ी थी, क्योंकि अगर अम्मा मेरे हाथ में यूं ही सुबह सुबह ताज़ा गुलाब देख लेती तो वो 100 बातें बनाती। इसीलिए मैंने वो जल्दी से दराज में डाला और अपने आप को नॉर्मल किया था। लेकिन अम्मा की नज़रों से मेरे चेहरे की घबराहट नहीं छुप पाई। अम्मा चलते हुए मेरे नज़दीक आन खड़ी हुई। क्या हुआ महारानी, किन ख्यालों में खोई हो?
और ये सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह तुमने कोई भूत देख लिया हो? मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं अम्मा को क्या जवाब दूं। मैं यूं ही खड़ी रही जब अम्मा मुझसे कहने लगी कि मुराकबे से बाहर आओ, 9 बज गए, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। भूख से समीर और तैमूर का बुरा हाल है, जल्दी से नाश्ता बना कर लाओ। इतना कहते ही अम्मा कमरे से बाहर चली गई। पीछे से मैंने सूखा सांस लिया। एक नज़र दराज को देखते हुए मैं बाहर आ गई। मगर फिर तो जैसे ये सिलसिला चल निकला था। हर रोज़ ख्वाब में मुझे कोई कहता कि तू मेरी दुल्हन बनेगी, और हर रोज़ मेरे हाथ में सुर्ख गुलाब होता। मैं उस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब मैं किससे ये बात शेयर करती? बेटियां तो माँ को अपना राजदार बनाती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी माँ को कोई भी बात बताती तो मेरी माँ को मेरी ज़ात की परख उड़ाने का मौका मिल जाता। मेरी माँ ये बात भूल गई थी कि मैंने भी उसी की कोख से जन्म लिया था। मैं उसी का ही खून थी। न जाने क्यों वो इस बात को भूल बैठी थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि इस बारे में नानी को बता दूं, मगर फिर नानी की तबीयत का सोचकर खुद पर बंद बांध लिया करती। नानी ज़रा ज़रा सी बात को परेशानी लेकर अपने सर पर सवार कर लेती। नतीजे में नानी का ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ जाया करता। ऐसे में मैं नानी को कुछ भी बताकर किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकती थी। खुदा न खास्ता अगर नानी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? एक नानी ही तो मेरा वाहिद सहारा थी। यूं दिन गुजरने लगे थे। फिर फूल जमा हो होकर मेरा दराज भर गया था। मैंने 1-2 मरतबा सारे फूल ले जाकर बाहर फेंक के भी थे, मगर वो फूल खुद ब खुद मेरे दराज में वापस आ गए। उस रात मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं इन सारे फूलों को आग लगाकर जला दूंगी। अम्मा सुबह नाश्ते के बाद कहीं चली गई थी। पीछे रह गई मैं और नानी। अब नानी के सामने मैं ना तो फूल निकाल सकती थी और ना ही कमरे से बाहर ले जा सकती थी। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं कि नानी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर आई तो तभी हमारे पड़ोस में रहती एक लड़की आ गई थी। वो आकर कहने लगी कि उसकी दादी नानी को बुला रही हैं। उसकी दादी और मेरी नानी की दोस्ती थी। नानी मुझे कहने लगी कि नूर, घर का ज़रा ध्यान रखना, मैं अभी उसकी बात सुनकर आती हूँ। मैंने नानी को बेफिक्र होकर जाने के लिए कहा था। नानी के जाते ही मुझे जैसे मौका मिल गया। मैंने फ़ौरन से बाहर वाले दरवाजे को कुंडी लगाई और कमरे में आकर फूल निकालने के लिए दराज खोला ही था। मगर जो ही मैंने दराज खोला मुझे फूलों के ऊपर एक पर्ची रखी हुई मिली। मैंने हैरान होते हुए वो पर्ची उठाई थी। वो कोई अजीब सी पर्ची थी। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये किस तरह का कागज़ था। उससे अजीब सी खुशबू आ रही थी। ये कागज़ अब यहाँ कहाँ से आ गया? पहले फूलों से जान नहीं छूट रही थी और अब ये पर्ची। मैंने कोफ्त से कहते हुए पर्ची खोली। उस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही मेरी पूरी की पूरी आंखें खुल गईं। उस पर लिखा था कि अगर मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मुझे आज रात उसी जंगल में मिलना जिसमें तुम उस रात रुकी थी। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने पर्ची पढ़ती उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया और वो टुकड़े भी फूलों के ऊपर ही फेंक दिए। मगर अगला मंजर देखते ही मैं शशदर रह गई। फूलों के साथ वो पर्ची के टुकड़े भी एकदम गायब हो गए। मैंने हैरान होते हुए वो पूरा दराज खंगाल डाला, मगर मुझे ना तो वो पर्ची के टुकड़े मिले थे और ना ही उन फूलों का कोई नामो निशान था। मैं सर पकड़कर बट पर बैठ गई। इतना तो मैं भी जान ही गई थी कि ये कोई आम मामला हरगिज़ नहीं था। अगर ये कोई आम सी बात होती तो ये सब कुछ यूं अचानक ही ना आता और ना ही गायब होता। मैंने वहीं बैठे बैठे पल में फ़ैसला कर लिया कि मैं आज रात जंगल में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जो कोई भी था उसने मुझे कोई नुकसान नहीं देना था। नुकसान होना होता तो अब हो चुका होता। अब मुझे बेचैनी से रात का इंतज़ार था। जो ही रात के 12 बजे मैं आहिस्तगी से बिस्तर से उठी और दबे पांव चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मगर आज मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं घर से निकली और जंगल की जानिब चलना शुरू कर दिया। हर तरफ हो का आलम था, मगर मेरे कदम न रुके थे। मैं मुसलसल चलती जा रही थी जब अचानक ही एक जगह मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया था और मैं अंधे मुंह नीचे जा गिरी। मेरे सर पर ज़ोरदार चोट आई थी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया
تو میں نے خود کو ایک عظیم الشان مگر عجیب و غریب کمرے میں پایا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بھاگنے لگی جب میرے کانوں میں وہی مخصوص آواز آئی، بیٹھ جاؤ رانی۔ میں بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی مگر میں نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ میں کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی پھر سے وہی آواز سنائی دی، پرسکون ہو جاؤ رانی، تم میری دلہن بنو گی، ابھی تھوڑی دیر میں رسم شروع ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے احتجاج کرنا چاہا مگر میری آواز نہیں نکلی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود کے اختیار میں تھی ہی نہیں۔ دل ہی دل میں مجھے اپنے یہاں آنے کی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں نے پھر سے ہمت کر کے پوچھنا چاہا۔ صد شکر کہ اس مرتبہ میری آواز نکل آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے مری مری آواز میں پوچھا جو بامشکل مجھے سنائی دی۔ تبھی میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تبھی ایک دم سے کچھ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے اور آنن فانن نکاح کی رسم شروع کر دی گئی۔ یہ رسم اس قدر جلدی ہوئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کب قبول ہے کہتے ہوئے خود کو ایک انجان آدمی کے نام کر گئی۔ رسم مکمل ہوتے ہی وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے اور ایک نوجوان اچانک سے میرے قریب نمودار ہوا جس کی آن بان بالکل شہزادے کے جیسی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، مبارک ہو رانی، میں نے وعدہ پورا کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری دلہن بنو گی، آج وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں بدک کر اس سے دور ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر سے سوال پوچھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی سچائی بتانا شروع کر دی۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ اس نے مجھے اس رات جنگل میں دیکھا تھا اور تبھی سے وہ میرا عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے گا اور میرے ساتھ کی گئی ہر کمی کو پورا کرے گا۔ وہ ہمیشہ میرا محافظ بن کر رہے گا اور ہمیشہ مجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ میں اس کے ساتھ عیش میں رہوں گی۔ میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے فوراً سے گھر لے جانے کو کہا۔ اس نے میری بات مان کر مجھے فوراً گھر پہنچا دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ نانی کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا۔ نانی پہلے تو بہت ڈری مگر جب وہ اس جن زادے سے ملی تو اس کی میرے لیے محبت دیکھ کر وہ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی۔ نانی نے مجھے اگلے چند دن میں ہی اس جن ذات کے ساتھ رخصت کر دیا اور میری ماں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔